Hello students, how are you all? Guys, today we are going to discuss a very important concept. Okay? यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कि डायरेक्टर को निकाला कैसे जाता है और डायरेक्टर खुद कैसे छोड़ के जाता है। ये दो बातें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आप ये एक लेक्चर आज का पूरा देख लेते हो तो आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क और इन दोनों की इम्पोर्टेंस और ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये दो तरीके हैं डायरेक्टर के जाने के कंपनी में से, ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, ओके, लेट्स टेक यू फॉर एन एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन अ जॉब एंड नाउ समथिंग इज नॉट राइट, सो ईदर यू विल गो ऑन योर ओन, right, or you will be asked to leave. These are the only two things that are possible for a person, right? So similarly, directors can also be, they can leave the company in two ways. Either they go on their own or they are being asked to leave. So going on your own would be resignation, okay? And if you are being asked to leave by the company, then it will be called removal of the director. So that is what we are going to discuss about today, okay? We have discussed resignation before also, but I wanted to give a comparison between the two. I wanted to cover the two topics together in one video so that it is easier for a lot of students to revise their stuff, okay? And we were supposed to go live with these classes today, but it could not happen today, so it will happen from tomorrow, okay? Things just sometimes they just take time when they are technical, right? So those may be the reasons. Quickly, let's start with what I have to tell you. My name is Alina Rais. I'm a chartered accountant and I have almost 5 years teaching experience. Okay, so that was a little about myself. Now let's talk about the Unacademy subscription. I'll quickly run you through this. This is the subscription that you can buy if you want to revise, or you can do your course for the first time also completely online, okay? All the 8 subjects together in the cost of this 36,000 that is mentioned at the bottom. But if you apply my code ALINACA, you will be getting a discount of 10%, which will again cut it down to even a lower limit, which is, I don't think, probably the cheapest you can get the entire course for, with all the amazing faculties for different subjects and all your 8 subjects being covered. Okay, so this is your step number 1, Unacademy Learning app. That is the app that you have to download to take the classes. I come there every time 7:15 in the evening, okay? In case the timings change or anything changes, I'll let you know in the further videos, okay? So this is the app, you have to install it. Top left corner plus icon, that is the icon that you have to press to select your course, your final, and then you get subscription, okay? And that is the code again, ALINACA, right in your face again and again. Sorry to bother with you this, but you are supposed to apply this if you want your 10% off, okay? Okay, so let's start with resignation of directors, okay? We did this a little while ago, but I'm going to still do it again with you, okay? So let's quickly talk about the resignation of the directors. How do directors resign and what really happens, okay? So first of all, let me start my pen. So resignation of directors is covered under section 168. If you can see, it is slightly slow and then sometimes it does not work. So all these problems will go away the moment I go live with these classes. Just one more day probably. Okay, so resignation of directors happens when a director says, but बहुत हो चुका, अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकता, ठीक है? It may be because of something going wrong with the company, some mismanagement with the company, things not looking good in future. That may be one of the reasons why director may choose to leave, okay? Then maybe he has some personal issues with other directors or maybe some other staff, okay? Probably because of which he feels that it's best to leave and start somewhere else, okay? So in such a case, company law has provided extreme freedom to the director. You can resign whenever, and whatever you decide, you may just do with your tenure in the office, okay? So if you decide to leave, nobody
Nobody. Mind my words, there are case studies on this point that I'm talking about right now. Nobody can force you to continue. Okay, no managing director can force you. No whole-time director can ask you to stay. No, they're not supposed to. They cannot by law. Okay, if you are a director and you want to leave, you want to resign, you are a master of your will. You can leave whenever you want. Okay, so that is what section 168 says, that you may resign. Okay, but there are a few steps that you will have to follow. There are a few actually there are 3 steps that you have to follow. Okay, first is, listen to me carefully. First is, you have to give a notice in writing. You have to actually write down your, like, writing would mean typing would also be included. Okay, so in writing you will have to provide a notice to the company, okay, stating your resignation. All right, then second thing that will happen is that you will have to inform the registrar also. So you will inform the registrar about your leaving. Okay, you will send a copy of your resignation. Along with that, you will also be providing proper detailed reasons for your leaving. Okay, and why does that happen? Why does the registrar need you to give all these reasons and stuff? The simple thing, some simple reason is that if somebody is resigning, there may be a picture of a foul play involved in the functioning of the company. There may be something wrong. Registrar needs to find that out. So registrar keeps maintaining these records to know if in future, maybe 2 weeks from now, 1 month from now, another director resigns, and another director also gives his reasons for resigning. So now the registrar can compare and see what are the reasons why are the people leaving one after the other. So he may look up the reasons. Okay, and then he may find out why exactly what is going on in the company, and then he may accordingly take some action about it, right? Because when you're running a company, you're not just running a company, you are running the lives of a lot of people. Okay, there are employees in a company, then there are people who've invested the money in the running of a company, especially in case of public companies. Okay, so what do? So that is why it's important that you state detailed reasons of your leaving. And of course, in future also, it may say serve as a record, as a as an evidence. Okay, so you may it's just somehow required. All right, so I think you got the point. Okay, so 168 enables the directors to resign. Okay, whenever a director wants to resign, he may use this section and leave the company. So first thing that he will have to give is a notice in writing. Okay, board will have to accept that notice. Okay, another thing that he will be doing would be point number 5. Everybody, forward a copy of his resignation with the detailed reasons, okay, for the resignation to the registrar. Oh god, what's happening? Quickly erase it. Guys, please attend the classes on Unacademy app, the classes that I take for you. Those classes are far more interesting and far more interactive. Students speak and they discuss their doubts, and everybody learns a lot. There is a huge learning curve involved, and even I get to learn a lot from what students are asking and their quality of doubts and quality of questions. You may come up with some nice doubts of yourselves. Okay, and over here the pen also does not work. There the pen works. So there's a difference. When the pen works, the efficiency is far more better. Okay, yeah, with the detailed reasons, resignation has to be sent to the registrar. Okay, within 30 days. All right, so 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को अपना रेजिग्नेशन सेंड करना होता है. अरे बस करो भाई, बस करो. See, I'm not really doing anything right now. It is happening on its own. God, अब तो ये चल ही नहीं रहा. Hold on.
हम सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ पाप किए होते हैं, तो अलग अलग तरीके से उसकी सज़ा मिलती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो हो गई आज की सज़ा, मुझे लग रहा है पूरी हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है? तो भाई रजिस्ट्रार को नोटिस जाता है रेजिग्नेशन का, वो हमने आपको बता दिया। DIR 11 में जाता है, DIR 11 में। ओके, एक बार थोड़ा ऊपर देखो जरा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि कंपनी को जब ये रेजिग्नेशन रिसीव होगा तो कंपनी को भी आगे जाके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो कंपनी किस में करेगी? DIR 12 में करेगी। तो DIR 11 और DIR 12 दोनों ही रेजिग्नेशन चेंज इन द डायरेक्टरशिप के नोटिस हैं। ठीक है, जो कि आपको रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं। ओके, चलो आगे। ये तो बस थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला दिया मैंने रेजिग्नेशन में क्या होता था, ये 3 काम होते थे। ओके, और रेजिग्नेशन इफेक्ट कब से लेता था? रेजिग्नेशन इफेक्ट लेता था आपका जब या तो वो कंपनी को रिसीव हुआ हो, ठीक है, या फिर अगर उस चिट्ठी के अंदर डायरेक्टर ने कोई डेट मेंशन करी है कि इस दिन से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक, इन दोनों में से जो भी डेट बात की है। So let's say the company receives the notice on the 16th of August, okay, and the date that was mentioned in the notice by the director was 30th of August. So which of the two is later? 30th of August is later. So 30th of August would be the date of his resignation, after which he will not continue in the office. Okay, so even if you receive the notice a little earlier, it does not mean that his resignation will become effective immediately. It does not work that way. Okay, so this was all about resignation. Not going too much into detail because first of all you've done it. I have uploaded a video on this topic before also. Okay, and secondly, I really don't want to get into the depth anymore. I want to move to the next topic, removal of directors. Now this is a very interesting section. Okay, it empowers the company to get rid of the people who are not working properly. Okay, so there are a few directors who are misusing their power, and people know that because people know everything. So people find that out about those people, and they know that their money is not safe when these directors are running the company. The company is not safe. The future is not safe. So what do? You decide to remove them. How do you do that? A special notice is required. Okay, you have read about special notice before. We may discuss about special notice in a further few classes that we take together, since I'm assuming that you're going to continue with these classes. Okay, so let's talk about removal of directors. So first section, 168 used to be about resignation, because law needs to be a little kind. Okay, law says कि पहले हम बात करेंगे कि आप जा रहे हो खुद से, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको निकाल दिया गया. ओके, बिकॉज इट डज नॉट साउंड वेरी नाइस. सो रेजिग्नेशन के बाद रिमूवल रखा गया है लॉ के अंदर. ठीक, रिमूवल में देखो क्या है. रिमूवल में कहते हैं कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर. ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि देखो किसी डायरेक्टर को रिमूव करने की बात कब उठेगी? तभी तो उठेगी अगर उसने कोई गलत काम किए हो. तो ऐसे केस में लॉ कहता है कि भैया हमको ज़रूरत नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन की, तुम सीधे सीधे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और निकालो जिसको तुम निकालना चाहते हो. अगर कोई बंदा ठीक नहीं है अपनी पोस्ट पे, तभी उसके लिए ऐसा काम किया जा रहा होगा, तो आप हटा दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर अदर देन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल. हाँ, तो अगर किसी डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो आप ऐसे डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते. ओके, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो आपकी कंपनी में रहेगा. आप कैसे निकाल सकते हो? आपने थोड़ी ना रखा था उसको. ठीक है, सो अदर देन द डायरेक्टर रिमूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल. Okay, before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard. तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, reasonable opportunity of being heard. मैं आपको बता रही हूँ लॉ इन चीज़ों में बहुत सख्त है. आप बिना opportunity of being heard के किसी भी बंदे के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते. आपको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी. ठीक है, इवन अगर आपको कभी कोई आपको फायर करता है जॉब से,
मैं क्यों बार बार ये एग्जाम्पल देती हूँ? एज अ टीचर मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करनी चाहिए। और मैं बार बार क्या बोलती रहती हूँ? निकालता है आपको जॉब से, निकालता है आपको जॉब से, निकालता है। सॉरी अबाउट दैट, ओके? आपको नहीं, आपके किसी दुश्मन को जॉब से निकालता है, ठीक है? तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है। उसको ये बोला जाता है कि भाई हम तुमको निकाल रहे हैं, ठीक है? तुम बताओ, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? हमें तुम्हारे काम में ये सारी कमियां दिखी हैं, ये 3 चीजें हैं जो तुम नहीं करते हो। आप बताओ, आपको कुछ बोलना है क्या इसके बारे में? फिर वो अपना पक्ष सामने रखता है, वो बोलता है हाँ, आई हैव टू से दिस, दिस एंड दिस, दीज आर द 3 आंसर्स दैट आई हैव टू गिव टू 3 ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ प्लीज लेट मी कंटिन्यू, ठीक है? तो अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का मतलब ये होता है कि the removal that is going to happen may not happen after that if he has duly explained himself and he says that fine, बाकी लोग भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जेन्युइन केस था, चलता है, कोई बात नहीं, अगली बार चांस दे देते हैं। तो फिर हो सकता है उसको रिमूव ना भी किया जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट से यही पता चलता है कि इसका मतलब अभी भी सुनने का स्कोप बाकी है, जरूरी नहीं है कि बस अभी के अभी निकाल दिया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Directors appointed on the principle of proportional representation cannot be removed. Again, तो एक तो ट्रिब्यूनल वाले को आप नहीं हटा सकते और एक आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले को आप नहीं हटा सकते, ठीक है? ये दोनों को आप नहीं हटा सकते क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट का स्पेशल रीजन होता है, इनको अपनी मर्जी से हटाया नहीं जा सकता, ओके? स्पेशल नोटिस, यही वाले नोटिस की बात कर रही थी मैं, जो मैं पहले बात कर रही थी ना कि स्पेशल नोटिस चाहिए होता है डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। देखो यही लिखा हुआ है, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन एंड अपॉइंट समबडी एल्स इन हिज प्लेस, ओके? बस, तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। देखो, there is a very good chance that if a director is being removed, that means he had done something wrong. That means whatever he was doing had the capacity of affecting the company in a negative way. That means his position was in a way important to the company, okay? Which is obviously why the company thinks that it is best that he moves and somebody else takes the place, okay? So when a director is being removed, another person has to be appointed in his place, okay? And that is also written in section 169. How do you do that? We're going to cover that today, okay? Point number 4. On receipt of the notice of a resolution to remove a director under section 169, the company shall, so now notice of a resolution to remove a director, ठीक है? ये कंपनी को रिसीव हुआ है, ओके? डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। कंपनी शैल forthwith send a copy thereof to the director. तो भाई सीधी सी बात है, कंपनी ने नोटिस भेजा है, मतलब मेंबर्स ने नोटिस भेजा है, तो अब कंपनी को वो नोटिस रिसीव हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी? यहाँ से आया वो नोटिस, इसको यहाँ वो डायरेक्टर को पास ऑन कर देगी कि देखिए आपके रिमूवल के लिए एक नोटिस आया है, ठीक है? वेदर और नॉट इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, भाई सीधी सी बात है, डायरेक्टर के लिए कोई ज़रूरी तो होते नहीं क्वालिफाइंग शेयर्स, हाँ? तो इसका मतलब हो सकता है वो शेयर होल्डर हो सकता है वो शेयर होल्डर ना हो, okay? But he shall be entitled to be heard at the meeting, okay? So whether or not he is a member of the company, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting, ठीक है? Okay, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना मेरे साथ, ठीक है? Where notice has been given of a resolution to remove a director under this section, director concerned makes with respect thereto representation in writing to the company. तो डायरेक्टर को एक चांस मिलता है कि आप लिख के हमको कुछ दो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर से रिसीव होती है कंपनी को, कंपनी वो फर्दर मेंबर्स को भेजती है कि डायरेक्टर की तरफ से हमको ये रिसीव हुआ है, ये लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है? तो कंपनी वो फॉरवर्ड कर देती है मेंबर्स को, ठीक है? बट अगर किसी रीजन से कंपनी फॉरवर्ड नहीं कर पाती है तो ऐसे केस में डायरेक्टर को चांस मिलता है कि वो उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में सबके सामने पढ़े,
या उसको पढ़वाया जाए, कोई और उसकी तरफ से पढ़ दे, बट उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाए इन द मीटिंग। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। In any notice of the resolution given to members of the company, state the fact that representation having been made. Okay, तो एक मिनट रुक जाओ, ऊपर का भी करना चाहिए था। यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ो जरा। Representation in writing to the company and request its notification to members of the company, and company shall, if the time permits it to do so, in any notice of the resolution given to members, state the fact of the representation being made and send a copy of the representation to every member. यही बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि representation की एक एक कॉपी सारे members को send की जाती है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, मैं इन स्लाइड्स को जूम नहीं कर सकती हूँ, मुझे कमेंट्स में दिखती है ये बात कि बच्चे बोलते हैं मैम आप स्लाइड को जूम नहीं करते हो। मैं नहीं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है जिस सेटअप में अभी क्लास हो रही है। बट जैसे ही मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फिर मैं शायद ये काम कर पाऊंगी। बट अभी क्योंकि मैंने उस सेटअप में क्लास ली नहीं है, इसलिए कुछ भी कमिट करते हुए थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है। बट एक बार यूट्यूब के लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं कर पाऊंगी शायद जूम उसको। फिलहाल आप प्लीज़ ऐसे काम चला लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट, ओके, अगर नहीं भेज पाए क्योंकि टाइम की कमी थी या कोई और रीज़न था, हाँ इनसफिशिएंट टाइम यहाँ लिखा है तो इसको मैं अंडरलाइन ही कर देती हूँ आपके लिए। अगर इनसफिशिएंट टाइम का रीज़न था तो डायरेक्टर को विदाउट एनी प्रेजुडिस, पढ़ो आगे, डायरेक्टर में विदाउट एनी प्रेजुडिस टू, होल्ड ऑन, director will receive the right to make his representation be read in the company. That is what is written here. अब मैं इसको पढ़ देती हूँ। The director may, without prejudice to his right to be heard orally, require the representation shall be read out at the meeting. तो भले ही हम written application, written representation नहीं भेज पाए, but at least director की representation को orally read करवाया जा सकता है मीटिंग के अंदर। That is allowed. Okay, प्रोवाइडेड इसका मतलब इसके अगेंस्ट अब आगे कुछ लिखा है। जब भी शब्द प्रोवाइडेड यूज होता है तो प्रोवाइडेड में जनरली कोई एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है वो फेल हो जाता है नीचे, ठीक है। तो नीचे देखते हैं क्या लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी गई है, ठीक है, और ये जो आगे का काम किया जा रहा है कि नहीं भेजी गई है और अब रीड करी जाए कि ना करी जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। एक बार देखो क्या लिखा है। देखो, अगर कोर्ट को, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा फील होता है ना कि ये जो सारे हम राइट्स दे रहे थे सेक्शन के अंदर, ये डायरेक्टर इसको मिसयूज कर रहा है, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा है और इसका कोई कोई हक नहीं बनता, हक तो बनता है बट क्योंकि ये बंदा ठीक नहीं है, ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा है, ये परेशान कर रहा है कंपनी को, अगर ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया तो फिर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जो डायरेक्टर है पैसे भी देने पड़ेंगे, जो भी पैसा बर्बाद हुआ होगा, और आपका ये राइट भी आपसे ले लिया जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट, तो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेजी ही नहीं गई, ठीक है, और लॉ ये कह रहा है कि जरूरत भी नहीं है भेजने की। ओके, तो आगे देखो क्या होगा। एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट, तो ना तो भेजी गई रिटन में, ना भेजी गई ओरली भी रीड आउट नहीं करी जाएगी। कब, आगे पढ़ो। ऑन द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स टू बी अग्रीव्ड, अगर कंपनी कहती है कि यार ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, पहले तो ये बंदा काम नहीं करता था ढंग से, अब जब हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये हमको लीगल प्रोविजंस में इन्वॉल्व करके हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारी वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है। अगर कंपनी ने ये बात बोली या किसी और बंदे ने कंपनी की तरफ से ये बात बोली तो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है कि हाँ ठीक है, ना तो रिप्रेजेंटेशन रिटन भेजी जाएगी और ना ओरली रिप्रेजेंटेशन रीड की जाएगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड ट्रिब्यूनल इस, अब जहां पे भी आपको रेड का कुछ भी दिखा करे ना, आप समझ जाओ मैम ने टिक बनाने की कोशिश करी है और ये पेन कहीं और भाग गया, ठीक है। ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस सबसेक्शन आर बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, तो डायरेक्टर जानबूझ के ना एम्पैथी बटोरने की कोशिश कर रहा है, लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे केस में
ट्रिब्यूनल कहता है कि ये दोनों राइट्स हम वापस ले लेंगे, नहीं देंगे हम आपको राइट, ठीक है। ओके, needless publicity for defamatory matter and the tribunal may order the company's cost on the application। देखो कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है ना इस एप्लीकेशन को करने में, किसकी एप्लीकेशन, जो कंपनी ने एप्लीकेशन करी है ट्रिब्यूनल को, इसकी कॉस्ट भी डायरेक्टर को देनी पड़ेगी। इन्हें कहते हैं डैमेजेस, ठीक है। तो हर तरीके का ये डैमेज वगैरह भी इसे नहीं, एक्चुअली डैमेजेस इससे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है, मैंने तो लूजली ऐसे ही यूज़ कर लिया कि ये कंपनी को नुकसान हुआ है तो अब डायरेक्टर को देना पड़ेगा, बट आप समझ रहे हो, आई होप, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी को नुकसान हुआ है तो डायरेक्टर को ये पैसे देने पड़ेंगे। पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर and the tribunal may order the company's cost on the application to be paid in whole or in part by the director, notwithstanding that he is not a party to it। हाँ, तो notwithstanding not a party to it का क्या मतलब है कि despite the director not being involved in the application, ये कंपनी ने खुद से चूज किया कि मैं एप्लीकेशन करूंगा या करूंगी टू द ट्रिब्यूनल, कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो एप्लीकेशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल को, डायरेक्टर तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं था। तो डायरेक्टर यहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग करके लिख दिया कि भले ही आप इन्वॉल्व नहीं थे, बट क्योंकि एप्लीकेशन आपकी वजह से हो रही है और हम कन्विंस्ड हैं कि आप बंदे ठीक नहीं हो, आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो, ठीक है, आपका काम भी ठीक नहीं हो, आप परेशान कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बिना बात की पब्लिसिटी बटोरना चाहते हो, तो ट्रिब्यूनल कहेगा एप्लीकेशन तो कंपनी ने करी है बट पैसा तुम दोगे। फेयर है, इट्स फेयर, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली इफ द डायरेक्टर इज रियली द रॉन्ग गाय। अगर वो अच्छा बंदा है, उसके साथ बुरा हो रहा है तो बात अलग है, जो कि लॉ में पॉसिबल है, क्योंकि लॉ सब्जेक्टिव होता है, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। वेल, ये बहुत ही वो है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, ठीक है, कि लॉ सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। इन अ वे देखा जाए तो लॉ बहुत ऑब्जेक्टिव है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी होती हैं, मगर फिर भी कभी कभी लॉ बहुत मिसयूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में लगता है कि लोगों का पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो गया और लॉ की सब्जेक्टिविटी दिखने लग जाती है। आई थिंक आई गॉट योर अटेंशन देन, यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ओके, सो कोई वैकेंसी जो अराइज हुई है उसको कैसे भरा जा सकता है, उसी जनरल मीटिंग के अंदर भरा जा सकता है जिसको डायरेक्टर को हटाया गया है जहाँ पे, ठीक है, या फिर एक कैजुअल वैकेंसी भी अपॉइंट हो सकती है। If the vacancy is not filled in the same meeting as above, then it may, यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पढ़ो आप मेरे साथ, ओके। अगर वैकेंसी इज नॉट फिल्ड इन द सेम मीटिंग तो कैजुअल वैकेंसी का केस बन सकता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे एज अ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक। पॉइंट नंबर 6 को एक बार पढ़ो मेरे साथ। वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द अफोरसेड रिमूवल if he had been appointed by the company general meeting may be filled in by the appointment of another director at the same meeting। may be word use हुआ है, may be हो सकता है उसकी जगह पे उसी मीटिंग में किसी को अपॉइंट कर लिया जाए, ठीक है। provided a special notice of the proposed appointment has been given। तो अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है तो स्पेशल नोटिस आपको भेजना होगा पब्लिक को, मतलब मेंबर्स को, बिफोर डूइंग दैट, ठीक है। हाँ, तो जो बंदे को आपने अपॉइंट किया है, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ जरा। पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा है कि जिस बंदे को आप अपॉइंट कर रहे हो रिमूव्ड डायरेक्टर की जगह पे, वो बंदा तब तक पोजीशन होल्ड करेगा जब तक ये जिसको आपने निकाला है उसने होल्ड करी होती पोजीशन, ठीक है। अब एक बार पढ़ लो जरा पॉइंट नंबर 7। अ डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड for which the director who has been removed would have held the office if he had not been removed, ठीक है। हाँ, बाकी ये है आखिरी के 2 सेक्शन, ये कह, बाकी के जो ये 2 आपके पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डायरेक्टर को कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकती, तो ऐसा कुछ मत करना कि आप डायरेक्टर को जो उसका राइट बनता है वो राइट मार लो, उसका पैसा उसको ना दो, ठीक है। कोई डैमेजेस अगर उसको मिलने थे वो ना मिले, ऐसा कुछ भी ये सेक्शन नहीं कहता है, ठीक है। तो एक तरीके से एंड में सेक्शन नहीं बोला कि देखो हम कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं
डेफिनेटली ये वाला जो पूरा सेक्शन है वो कंपनी के सपोर्ट में है, अगेंस्ट द डायरेक्टर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टर को नीडलेसली कोई हार्म पहुंचाओगे। जो उसका ड्यू कॉम्पनसेशन है, जो उसके ड्यू डैमेजेस है, वो तो आप उसको दोगे ही दोगे, ठीक है। आगे ये भी लिखा है लास्ट पॉइंट में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डेरोगेटिंग फ्रॉम एनी पार्ट टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो कॉम्पनसेशन वाली ही है कि कॉम्पनसेशन, एक बार पॉइंट 9 रीड करो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू डिप्राइव अ पर्सन रिमूव्ड अंडर दिस सेक्शन of his rights to compensation or damages payable to him in respect of the premature termination of the directorship। भाई तुमने अचानक से उसकी जॉब उससे छीन ली, उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको कुछ पैसे मिल रहे थे यहाँ से, अब वो कहाँ से, अब उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना कि वो अगले कुछ महीने अपना सर्वाइवल कर सके। तो जो भी डैमेजेस और कॉम्पनसेशन उसको मिलने थे, ठीक है, टर्मिनेशन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से वो सब कुछ उसको मिलना चाहिए while you are letting him go, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मैं बंद करती हूँ इसको। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना। कल से मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ, आज शाम से आप अनअकैडमी के भी लाइव सेशंस में मेरे साथ जुड़ सकते हो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, ओके, वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलेगी। बाकी ये मेरा कोड है अलीना CA, आप सब्सक्रिप्शन बाय करते वक्त ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैं आपको अब शाम में मिलूंगी अनअकैडमी पे 7 बजे, 7:15 बजे एक्चुअली, और कल आपको लाइव क्लास में सुबह YouTube पे मिलूंगी। आप अपना ख्याल रखना, ओके, आई विल सी यू गाइस, बाय।